आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने 14 स्लाइड से कर लिया था. We have got 14. Okay. Okay, this is the bar graph till 2012, right from 1996 to 2012. It shows the sales, the number. Okay. ठीक है. Okay. Himanshu, please start. Yes, sir. Several elements of company strategy. The plan devised to maintain and build competitive advantage over the competition. Structure. The way the organization is structured and who reports to whom. Systems. The daily activities and procedures that staff members engage in get the job done. Shared values. These are core values of the company that are evidenced in the corporate culture and the general work ethic. Style. The style of a leadership adopted. Staff, the employees and their general capabilities. Skills. The actual skills and competencies of the employees working for the company. ये exactly जो जितना भी जो 7 elements we are talking about in Lamborghini, पूरा एकदम से ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को एकदम कॉपी नहीं किया हुआ है, पूरा फॉलो नहीं किया हुआ है. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, अ क्वालिफाइड पीपल, राइट, एवरीथिंग वेल स्ट्रक्चर्ड, अ फॉर्मल हायरार्की. ठीक है, हु विल रिपोर्ट टू हुम. ठीक है, उसको इन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने उसको फॉलो किया है. इसको अगर जितने लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, इट्स नॉट दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ लैम्बोर्गिनी. नो, इट वाज सेड बाय मैक्स वेबर, जर्मन. टॉक अबाउट full strategy structure में the way the organization is structured and who reports to whom, who will report to whom. That is a proper scalar chain of Henry Fayol as well. It gets the combination of the classical theory. Classical theory talks about it's a combination of Henry Fayol, Max Weber, and Frederick Taylor, scientific management as well. Okay. Fine. Now let's see the structure of the company. Yes. The company has very strong value, knowledge sharing and innovation, together with the need to take into consideration the interest of all legitimate stakeholders in company activities, strengthen the importance of clearly defining the values and responsibilities. ये पॉइंट को देखिए एक मिनट. वेद, हेलो वेद. ये this third point talks about that together with the need to take the consideration the interest of all legitimate stakeholders in the company. ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का कौन सा रूल है? मिशन में 5 मिशन होता है ना. अप फोकस्ड एंड इन फोकस्ड मिशन होता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में. अप फोकस्ड एंड इन फोकस्ड. Up focus, it talks about serving all the people, outsiders, all the outsiders who have invested in your company, उनको serve करना. That is up focus mission. And in focus mission talks about the profit of the company, about the working of the company. Exactly bureaucratic management follow किया गया है. The company is supposed to take the interest of the stakeholders. ठीक है, अब फोकस और इन फोकस मिशन, इसको याद रखिएगा. ठीक है, आगे पढ़िए. Company recognizes, accepts, shares and undertakes contributing to build a way of doing business which is better for all collaborators, directors and stakeholders. हाँ, एक मिनट, इसमें एक पॉइंट देखिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, मतलब किनको बनाया जाता है, किन किन लोगों को? एनी आइडिया? मुस्कान मल्होत्रा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इसको गूगल में सर्च कीजिए आप अभी.
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है और जो जो टीम बनती है, ठीक है, वो कैसे बनती है। इसको गूगल में सर्च करके प्लीज लेट मी नो। ठीक है हिमांशु, आगे पढ़िए। Yes, sir. The management supports its employees very much. They have a knowledge management system where best talents are identified and encouraged. बेस्ट The टैलेंट्स। yes, the company commits to offer equal working and promotion opportunity to all staff. दैट इज की हेनरी फ्यूल इक्विटी, Yes, हेनरी sir. फ्यूल्स इक्विटी फंक्शन, 14 फंक्शन में ये पूरा जो है क्लासिकल थ्योरी का, ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट ब्लेंड है, यू नो द कॉम्बिनेशन ऑल अबाउट। खैर वो तो एक एस्पेक्ट है ही, ये एस्पेक्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, हाँ बोलिए सर मुस्कान मल्होत्रा। सीईओ है, सीईओ है, हाँ। सीएफओ है, सेंट्रल फाइनेंस ऑफिसर, उसके हाँ। बाद एमडी है और बाकी सारे चेयरमैन है। अच्छा नहीं, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, मतलब बाहर के लोग भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। ये सर जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है जिनका अमाउंट ज्यादा दिया हुआ है वो लोग होते हैं इसमें शामिल। वोटिंग राइट्स किनको होता है? डिबेंचर होल्डर, ठीक है, प्रेफरेंस होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स। वोटिंग इक्विटी राइट्स, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होता है, राइट। Yes, sir. तो कुल मिलाकर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सारे लोग वो इलेक्शन से बनते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जब वोटिंग राइट्स आ गया, वोट हो रहा है, तो वहां भी इलेक्शन हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. तभी हुआ, फाइन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ टीम दैट कंप्राइजेस ऑफ, इट कवर्स फ्रॉम ऑल द यू नो द फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें वैसे लोगों को भी लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री अगर आपके किसी बगल के गांव में से लगती है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें आपका जो उधर सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, हो सकता है कि वो जो मुखिया हैं उनको भी शामिल रखा जाए। तो इन सब लोगों को मिला करके, ठीक है, मतलब समाज का पूरा प्रतिनिधित्व ऐसे होता है। कंपनी में भी ऐसे ही होता है, जो अच्छी कंपनी, एथिकल कंपनी होती है बड़ी। अब ऐसा क्यों किया गया? जब तक सभी लोगों का थॉट प्रोसेस को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, तो बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर सर्विस ना फ्रेम नहीं हो सकता है। इट इज not that only the people who are in the within the company, they are giving the feedbacks and all the input I'm talking about. It is the outsiders also, outsiders हैं वो भी आपको input देते हैं, तो उनको भी शामिल किया जाता है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कोलैबोरेटर्स, डायरेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर में सिर्फ जो पैसा लगाते हैं सिर्फ वही है, जिन्होंने जमीन दिया है वो नहीं है क्या? जिन्होंने जमीन लीज पर दिया है, ठीक है, वो लोग भी तो शामिल हो सकते हैं, वो लोग भी स्टेक होल्डर्स है। ऐसे सोच सकते हैं ना हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सभी लोगों का एक यू नो टीम बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर मीटिंग होती है, दैट इज की द एजीएम जिसको कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें सभी लोग शामिल होते हैं और उसके बाद इस तरह से काम होता है, सब लोगों का राय मशवरा करने के बाद, ठीक है। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का अगेन, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स, ये पूरा इसमें आपको एग्जांपल में दिख रहा है आपको। दैट इज की द कंपनी कमिट्स टू ऑफर इक्वल वर्किंग एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टाफ्स, दैट इज इक्विटी, Yes, ठीक sir. है। इसमें हु विल रिपोर्ट टू हुम, इट इज द स्केलर चेन। Yes, तो sir. अब जाकर के आपको हेनरी फ्यूल और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा इस एग्जांपल से। परफेक्ट एग्जांपल है, क्लियर है? Yes, sir. Fine. And of course, all the functions of management, that is planning, organizing, staffing and all, वो भी clear है। Proper coordination, proper planning, everything very proper. Everything at its place, everything at its place, हर चीज अपनी जगह पर है और हर चीज के लिए जगह है,
ठीक है, हर मशीनरी, हर इक्विपमेंट, हर आदमी, हर एम्प्लॉय, उनके लिए एक जगह है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आ गए तो अब भाई बैठने की जगह नहीं है, तो इस तरह से नहीं, सबकी अपनी जगह है और सब लोग अपनी जगह पर हैं। दिस इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ओके, नाउ लेट्स डू द SWOT एनालिसिस। ओके, स्ट्रेंथ को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पढ़िए। Strength. It is especially famous for its exquisite design and its Irresistible, irresistible looks irresistible, worldwide. Irresistible looks irresistible, worldwide. irresistible look high- समझ में आया हिमांशु? What is irresistible look? अनोखा या फिर बोले एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि हिमांशु ना, मतलब ठीक है, जो तुम्हारा रेसिंग बाइक होता है, जो बाइक रेस वाला होता है, ठीक है, उसका जो शेप है, ठीक है, तुमको खरीदना नहीं है, लेकिन उसके शोरूम से बगल से गुजर रहे हो, तो मतलब रुकना पड़ेगा कि नहीं उसको देखने के लिए? यस सर, मतलब जो कदम है, जो पैर है हमारा, वो रुक जाएगा, क्योंकि इतना शानदार डिजाइन है। ठीक है, तो सबसे जबरदस्त बात रही जो डिजाइन में आपका लुक्स जो है, इन्होंने डिजाइन जो बनाया पूरा एरोडायनेमिक है, क्योंकि एयरफोर्स में काम कर रहे थे ये फेरिशो लैम्बोर्गिनी, तो वहां से एक्सपीरियंस उनका था कि किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, तो पूरा एकदम परफेक्ट एरोडायनेमिक डिजाइन है। एंड ऑफ कोर्स द लुक इज जैसे कहा जाता है ना कि इट इज द चीज द माइस कैन रेजिस्ट। चीज को जो होता है, माइस होती ना, चूहा, ये सब, वो उसको खाने के लिए आएगा ही और वही ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ भी लुक्स भी जो है ना एकदम वैसे ही है। इट इज द लुक्स द ऑडियंस कैन रेजिस्ट, दे हैव टू गिव अ थॉट। ठीक है, आगे पढ़िए। it is highly appreciated and demanded by superior rich and famous people who desire to have a super sports car. हाँ, इनका एक निश मार्केटिंग भी था कि एक प्रॉपर सेगमेंट के लिए ही ये डिजाइन कर रहे थे। तो फिर है कि स्पोर्ट्स कार ही को हाई स्पीड कार, हाई मतलब बहुत ज्यादा तेज मशीन उन्होंने बनाया था, वही इनका एजेंडा ही था। ठीक है, एक निश मार्केटिंग था, निश मार्केटिंग है फॉर द सुपीरियर रिच पीपल हु डिजायर स्पोर्ट्स कार। तो उसमें जो कस्टमर हैं हिमांशु इस लैम्बोर्गिनी के, हैपेंस टू बी रिच का मतलब है कि जैसे ऑल द किंग्स ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड देयर सन्स, जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्री में सऊदी अरब है, तो ओमान है, तो ये सब है, तो उनके जो राजा के जो बेटा है, सबके पास लैम्बोर्गिनी है, सबके पास एक लैम्बोर्गिनी तो रहेगी रहेगी। बहुत कर होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ। It has been known for superior handling and high speed performance. Adds a value to your lifestyle and profile with utmost satisfaction. utmost, अत्यंत, utmost का मतलब more than satisfaction। ठीक है, पढ़िए आगे। Innovating new and exclusive designs models in every 2 years with more high-end concepts. हर 2 साल में। अब इसमें यहाँ पे एक चीज देखना होगा हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक मशीन को बनाने के लिए, किसी भी एक मशीन को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 साल तो लग ही जाएगा डेवलप करने में, 2 साल लगेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2021 अभी चल रहा है, 2021 को एक मशीन हमने लॉन्च किया, बहुत शानदार है, बहुत टेस्टिंग किया। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्च हुआ और ये बहुत पसंद किया गया, द मशीन हिट है, मॉडल हिट है। ठीक है, उसके दूसरे दिन से या तीसरे दिन से, ऐसे समझना होगा हम लोग। ठीक है, एग्जैक्टली हम एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन समझना ऐसे है। उसके बाद जो टीम है वो दूसरे काम में, दूसरे मशीन में लग गई है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही हुआ होगा। Yes, sir. मेरी आवाज सबको आ रही है? तो Yes, Yes, sir. sir. कैमरा ऑन कीजिए। ये कंफर्ट जोन जो है ना, फाइन। तो दैट इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कामयाबी जो हासिल हुई, एक कामयाबी हासिल हुई, ठीक है, वो अब खत्म हो गई। ओके फाइन। दूसरे दिन से अब अपने ही से कंपटीशन है,
आपको कंपटीशन खुद से है, और अब दूसरी बेहतर मशीन को बनाने में लग गए पूरी टीम, और फिर 2 साल के बाद फिर एक नया मॉडल लॉन्च किया इन्होंने। इतना टाइम तो लगेगा पूरा इंजन को डिजाइन करने में, फिर शेप को डिजाइन करने में, एरोडायनेमिक सारी चीजें, और वो ऐसा है कि पहले से और बेहतर होना चाहिए। पहले वाला भी ऑलरेडी बहुत बेहतर है, बहुत हाई स्पीड है, वेरी रॉबस्ट मशीन एंड ऑल। अब उससे और बेहतर बनाना है। हियर इज द चैलेंज एंड हियर इज द विजन, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। Beast with a Beauty established the standard of a mid-rear engine for sports car and super sports cars. Brand name. ब्रांड नेम ऑफ कोर्स, ये नाम याद रखिएगा, बीस्ट विद अ ब्यूटी। बीस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब वो दानव, दानव या समथिंग, है Yes. ना? तो इसको मतलब किधर से कोरिलेट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी देखिए इनका। ठीक है, उन्होंने इसको बीस्ट कह रहे हैं। इट इज नॉट अ कार, रेस्ट आर द कार्स एंड दिस इज बीस्ट विद ब्यूटी, हाई स्पीड एंड ऑल लाइक दैट। ठीक है, वीकनेस, Weakness. Fuel बहुत consumption ज्यादा, is too high. Maintenance. Yes, maintenance charge is too high and specific repair regional shops. Price is too high and not तो affordable by everyone. वीकनेस तो है ही, ठीक है, ये वीकनेस है, लेकिन फिर है कि ये वीकनेस नहीं है। हमने कॉमन पीपल के लिए कार बनाई भी नहीं थी, मेरा एजेंडा क्लियर था। तो एग्जैक्टली ये वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि इट इज फॉर हाई एंड पीपल, और ज्यादा स्पीड की कार होगी, ठीक है, तो वो उसका माइलेज तो बहुत ज्यादा कम होगा। तो बाय द वे इसका माइलेज चेक कीजिए, तो एवरेज माइलेज कितना है लैम्बोर्गिनी माइलेज, प्लीज गूगल में, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा नंबर। 1 लीटर हाउ मेनी किलोमीटर प्लीज? 1 liter of petrol how many kilometers? Sir, 5 to 6 kilometer per liter. 5 to 6 किलोमीटर। हाँ ठीक है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं मुस्कान? सर इससे ज्यादा तो स्कूटी का माइलेज होता है। अच्छा, तो ये 1 लीटर में 5 किलोमीटर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? अभी तेल तो सस्ता हो रहा है, तेल तो काफी सस्ता हो गया है, तो हम लोग अफोर्ड सेंचुरी कर, पार कर गया। हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वेद हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना? नहीं सर, कहाँ। अरे डरो नहीं दोस्त, लेट्स डू इट, ठीक है ना? अब एक लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं हम लोग, उसको चलाएंगे पटना में। एक वीकनेस है इसमें, 2 ही लोग को बैठने की जगह है। Yes. इतनी बड़ी कार है, इतना हेवी मशीन है, आदमी 2 ही बैठेगा, तो दिस इज समथिंग तो पूरे फैमिली को नहीं सर बैठा आप सकते। खरीदिए, फिर हम लोग बैठेंगे। बाबू ड्रीम में हमने कितना खरीद करके उसको ये कर दिया, स्क्रैप में डाल दिया। ठीक है, हमने बहुत खरीदा है, और हमने बहुत भाई कार को चलाया है। और माइकल शूमाकर साहब जो थे, जो फॉर्मूला 1 के रेस के चैंपियन थे, उनको कई बार हमने हराया है, ठीक है ना, कई बार। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को पढ़िए, जो To increase customer relations. मतलब ये events and आकांक्षा, 1 मिनट होल्ड। आकांक्षा, हमने बताए थे हमने कौन कौन सी कार चलाई है, बहुत एकदम at a speed of 487 miles per hour, ठीक है, the speed of a bullet train। तो ये आपका लैम्बोर्गिनी है, फिर आपका फरारी है, फिर आपका बुगाटी है, ठीक है, उसके बाद आपका डॉज चार्जर है, उसके बाद रैंगलर है, ठीक है, उसके बाद से मर्सिडीज का एसयूवी है, उसके बाद से BMW का 740 Li है, और X6 भी है BMW का, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सब सारी कार हमने चलाई हाँ है, सर। क्लियर है? हाँ, उसके बाद से हमर जो है, हमर का H1, H2 और H3, ये तीनों वर्जन हमने काफी चला करके, ये सब कार हमने चला करके स्क्रैप में दे दिया, ठीक है। तो नाउ इट्स योर टर्न। मतलब आई हैव नॉट लेफ्ट एनी हाई स्पीड मशीन जिसको हमने नहीं चलाया सर है। आप ही कहते हैं ना, जो ड्रीम देखते हैं वो, मतलब जो पूरा नहीं होता वही ड्रीम में देखते हैं। हमने वही किया ना बाबू, हमने भी तो वही किया। खैर, ठीक है, पढ़िए।
to increase customer relations, events, and activities which will showcase and enhance the ownership experience. To increase the global reach, as currently it has been restricted to a few regions. To do away with the regional quota system and sell on the basis of demand, it was seen that when they launched their models in India, the demand was exceed for अब supply. एक बात को समझिए, अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, ओके। एक चीज को समझना होगा, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, ये अपना मतलब हम लोग वही पढ़ते हैं जो अगला लिखता है, ये समझिएगा। वी ओनली रीड व्हाट दे राइट, सिंपल, ठीक है। तो और उसी को हम लोग सच मान लेते हैं। तो दैट इज कि हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन रहा, प्रभाव रहा, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स का बहुत प्रभाव रहा। अब उन्होंने जो लिखा उसको हमने पढ़ा, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें सिखाई जाती हैं जनरेशन को, बच्चों को, ठीक है ना, मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये कहावत कही गई कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब हर चीज थोड़ा 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 आप जानिए, कोई जरूरी नहीं कि एक चीज का मास्टरी आप कीजिए, एक चीज का मास्टर नहीं बनने के लिए बोला गया, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब सब चीज आप थोड़ा 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 जानिए आप, ठीक है। तो डोंट यू फील सो कि ये एक नहीं होता है, एक सबऑर्डिनेट का, एक असिस्टेंट का ट्रेट है, फीचर है कि मेरा सबऑर्डिनेट ऐसा हो, मेरा असिस्टेंट ऐसा हो कि वो सब काम कर ले, ठीक है। तो सिस्टम अपना इस तरह से बना कि भाई वो हेलो, सॉरी क्लास, फाइन। अब यहां पर ये केस जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि ये लोग एक स्पेशलिटी में, एक टारगेट में, ठीक है, एक ही मास्टरी हासिल कर रहे हैं और ये कामयाब है। तो इस चीज को हम लोग को वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग द जैक ऑफ ऑल ट्रेड, नो, सब चीज नहीं, कोई एक चीज को पकड़िए और उसमें पूरा मास्टरी हासिल कीजिए। ये बात क्लियर है? ये बात कन्विंसिंग है वेद? यस सर, है तो कन्विंसिंग। मतलब वो सब चीज को जानना जरूरी नहीं है, कोई अपना एक इंटरेस्ट है, ठीक है, अपना एक टारगेट एरिया है, उस पे एकदम से पूरा एनर्जी को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पूरे एनर्जी को, और सिर्फ उसी पे काम करेंगे, ये सब पे नहीं करेंगे। इट्स नॉट द जैक ऑफ ऑल ट्रेड, वो विजन को डाइल्यूट करता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इफ यू टॉक अबाउट ऑल दिस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, this Sachin Bansal, this Ritesh Agarwal, they were only targeted to one point, and that was this क्या कहते हैं, e-commerce, ठीक है। और बाकी फिर टीम लगा करके, तो बाकी तो क्लर्क और असिस्टेंट तो पूरा आबादी भरी हुई है जो आपके काम को आगे बढ़ा देगी। बट माय पॉइंट इज ओनली वन, टू क्रिएट अ पोर्टल, क्रिएशन करना है हमको और उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये है आपका अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। कोई पॉइंट बचा है इसमें? No, sir. जैसे केस स्टडी जो है ना, जो भी है इसका, इससे हम लोगों को इन्फ्रेंस आउट करना है कि व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। इनका था लैम्बोर्गिनी का, राइट फ्रॉम ट्रैक्टर टू स्पोर्ट्स कार, तो स्पोर्ट्स कार में इनको आना ही था, ठीक है, उनको चैलेंज करना ही था। इट वाज वेल डिसाइडेड, ठीक है। उसके बाद सिर्फ स्पोर्ट्स कार, हाई स्पीड, तो उसमें थ्रेड जो आपका वीकनेस है ना, इट्स नॉट द वीकनेस, वो मेरा स्ट्रेटेजी था कि हमको ऐसा ही बनाना है। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो माइलेज बहुत कम है, हाँ माइलेज कम है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इफ यू आर कॉम्पिटेंट एनफ टू अफोर्ड माय व्हीकल, यू आर वेलकम इन माय क्लब, एंड
and if you are not competent enough to afford my vehicle, you are not welcome. यही काम तो आपका रॉल्स रॉयस भी करता है। रॉल्स रॉयस को जैसा सुना हमने, वो खरीदने आप जाइएगा तो वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आपको खरीदने के लिए देते हैं। ठीक है, ओके, थ्रेट्स को पढ़िए। Threats. The threat is custom modifiers who have the original presence and ability to make a car to exact taste of the buyer. Government policy against high fuel consumption. Intense competition in the niche segment from other premium brands. थ्रेट्स में क्या क्या आ गया, इसको थोड़ा कुछ बोलिए आप लोग। वेद आप बोलिए। तो पहला तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि हाई कंजम्पशन या रेंज है, फिर इंटेंस कंपटीशन नीश सेगमेंट में, जैसे कि फरारी से या एस्टन मार्टिन से, वहां से बहुत कंपटीशन है। और जो कस्टम मॉडिफायर्स हैं कार के और अच्छा रीजनल प्रेजेंस है, उनका भी एक थ्रेट है वहां से कि वो उनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है, तो उससे भी एक threat है अपना मार्केट बनाने में। तो वो कंपटीशन। फाइन, एक ठीक है। Competition is of course there. Competition is not threat. Competition is all about, it's all about opportunity and strength as well. Competition is not threat. ठीक, और लोग भी निश में है। आपका बहुत सारा जो हाई एंड है, अब पहले हम लोगों ने जो देखा पोर्शे है, ठीक है, आपका फेरारी है, नाउ बुगाटी वेरॉन बुगाटी है, ठीक है, बट स्टिल कंपटीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है अगेंस्ट हाई फ्यूल कंजम्पशन, उसको फिर हम लोग ओवरलुक कर ले, उसको हम लोग मतलब लैम्बोर्गिनी पीपल विल टेक केयर ऑफ एंड दे विल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी फिर वो लोग इतना डिजाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाई स्पीड दे विल कम अप विद। खैर, ओके फाइन, मोर प्रोडक्ट्स, इसको देखिए। More products. अब इसमें यहाँ हम लोगों के काम की चीज शुरू होती है, ये तो हम लोग ले सकते हैं, है ना, दिस वी कैन टेक। ठीक है, पढ़िए। Lamborghini has been doing a lot to keep the company standing out from the various competitors, and with the financial help of Audi, they can do so. Lamborghini would want to show a little skill in the two-wheel department as well. टू व्हीलर्स में भी हैं ये लोग, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स व्हाटएवर दे विल डू इन स्टाइल एंड दे विल डू इन विद एलिगेंस, दैट इज फॉर श्योर। ओके, ठीक है, ब्रांड मर्चेंडाइजिंग, फाइन। Lamborghini licenses its brand to manufacturers that produce a variety of Lamborghini branded consumer goods, including scale models, clothing, accessories, bags, and electronics. अब ये सब प्रमोशनल गुड्स है, ठीक है, तो अब ठीक है, लैम्बोर्गिनी का हम कार तो बाइक तो नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन टी शर्ट तो खरीद सकते हैं। Yes, sir. उससे हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हमने वार्डरोब में पूरा वार्डरोब में मेरा भरा हुआ है, लैम्बोर्गिनी का शूज है, टाइज है, ये सब मेरे वार्डरोब में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी अपने वार्डरोब में ये सबको खरीदिए, ठीक है। आकांक्षा, Yes, sir. ये सब तो खरीद सकते हैं। हाँ, ठीक है, आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। ये है। फाइन, Recommendations and personal analysis. In my opinion, the company should work on low price and low oil consumption cars for lower class. The company should create maintenance and repairable shops in different zones. ठीक है, इसमें क्या क्या बात कही जा रही है? Low price में सर लो जो कि मतलब रिकमेंडेशन है। यस सर। हाँ, लेकिन लो प्राइस में करेंगे ना, मतलब हम, ये मेरा एडवाइस है कि मतलब लो प्राइस में फिर वो ये हो जाएगा, कंपनी का जो मतलब लोअर क्लास के लिए भी ये तो नीश मार्केटिंग है ना, वो खत्म हो जाएगा, अब फिर वो जनरल कार ही हो जाएगा फिर। यस सर। कुछ चीज नहीं हो तो बेहतर है आप वहां तक पहुंचिए, उसके लायक बनिए,
ठीक है, वो बेहतर है।